Hello, friends. A warm welcome to all, and we are going to discuss a concept through a question which was just asked to one of my candidates, and he tried to attempt it and shared with me. And let's try to see कि वो question जो है वो मांग क्या रहा है, and then whether there is any probability to see it in a different way. आप exam में होते ऐसे किसी question को how you can handle it. So I am bringing question to your knowledge, and here is the question. Is it, I think, visible on your screen? I'm going to read it out. Question है कि भाई consider the following statements regarding the principle of collective responsibility. There's the principle of collective responsibility in polity. We all know that, and that principle is related with Article 75 of the Constitution. अगर मैं डायरेक्टली बोलूं एकदम से अगर माइंड में आएगा, और वो कहता भी क्या है, Article 75 says that the Council of Ministers is collective responsible to the लोक सभा. तो collective responsibility का एक concept है हमारे Constitution में. And that means all the ministers are having a joint responsibility. I think ये question इसलिए बनाया गया होगा because recently Supreme Court has given a verdict जिसमें उसने कहा कि कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर अगर कुछ कहता है तो आप उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जोड़ के नहीं देख सकते. यू कांट सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ what I should say, you can't see it from the perspective कि अगर individual minister is saying something, then doesn't mean that it is endorsed by the council, or that doesn't mean that it is being said by the government. That is what was being said. So इस context में ये question आया, and question जो है जैसा मैंने आपसे कहा, question says that I'm just showing it to you once more. Question says that, I'm reading out it completely once more. Yes, it is here again. तो पहला बोला, under the principle of collective responsibility, individual members of the government are held accountable for actions and decisions of the government as a whole. Under the principle of collective responsibility, individual members of the government are held accountable for actions and decisions of the government as a whole. ये true है, because that is how the moral responsibility on the floor of the house also comes into picture. Okay. Second statement says that the principle of collective responsibility is present under Article 75(3). थर्ड बात है, सही बात है, आपको याद है तो अच्छी बात है, 75 भी पता है तो करेक्ट हो जाएगा. Which states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. ये भी सही है. पर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है the principle of collective responsibility is the basic structure of the Constitution of India. पहली बात तो फ्रेमिंग ही गलत हो गई. थर्ड स्टेटमेंट की फ्रेमिंग ही गलत हो गई है. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये फ्रेमिंग गलत है, बिकॉज ये फ्रेमिंग हमें ये बताती है कि बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है मेरे हिसाब से, या मतलब वैसे एरर हो जाता है इसके अंदर. आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू से औशिक? सर बेसिकली द क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है कि टेल मी अबाउट वही लास्ट स्टेटमेंट पे ही बोलना है बस, या इफ आई एम मिसिंग आउट समथिंग. हाँ सर, लास्ट, यस सर, बिकॉज देयर इज नो सच अ डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स द लिस्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. नहीं, इट इज द करके पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला ना. हाँ, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर बोलते तो रॉन्ग हो गया, वो लैंग्वेज ही रॉन्ग हो गई मेरे हिसाब से. इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. अगर वो कहता it can be considered as part of the basic structure doctrine, it comes under the basic structure doctrine, it is influenced by the it also influences basic structure doctrine, it enshrines itself in the basic structure doctrine, तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता. प्रवेश. Sir, there is a thin line of difference between the salient features of the constitution and the basic structure of the constitution. सही बात है, हाँ. So I will ask, so the salient features are part of the basic structure or not? Not all, sir. Not all salient features are part of the basic structure. Like, which is not part? Sir, I want to explain this concept that one line. The basic structure doctrine is timely decided by the judiciary. आगे बोल. अभी तक hitherto, like independence of the judiciary, parliamentary form of government, these are the part of the salient features which have been considered as a basic structure. But there are other some salient features which are not the basic structure, which will be at the which are depend on the judiciary to decide in the further course of time. हाँ, नहीं, by it is not. हाँ, maybe you can say not decide. It will come into fora. You can say so.
when the time will come, when the conflict of the interest arises or when any organ is transgressing its boundary, and then it will be coming to judiciary, then judiciary will say you cannot tamper with it because it is part of the basic structure. So inherently all salient features और the basic जो फीचर है प्रियम्बल से लेकर सब कुछ भी जो भी salient feature हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, that is actually part of the basic structure of the constitution. That is how it is as far as the present understanding is concerned. Vaibhav, do you agree with this? Yes sir, I agree. मेरे हिसाब से तो ये मत बोलो कि कोर्ट डिसाइड करेगा तो टिक लगेगा। अरे भाई कोर्ट के पास वो मजबूरी आती है तो कोर्ट याद दिलाता है भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मत छेड़ो। हाँ बोलो कौशिक। सर कोर्ट डिसाइड करता है बाद में, लेकिन ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो। हाँ बाद में वो डिसाइड करते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि सेकुलरिज्म पार्ट है कि नहीं या सोशलिस्ट पार्ट है कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है कि पार्ट है, मतलब सबके मतलब पहले से बोला जाता है कि है, लेकिन कोर्ट बाद में डिसाइड करता है जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वही तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, द सेम थिंग आई टोल्ड यू दैट द कोर्ट टॉक्स अबाउट इट ओनली व्हेन दैट नीड अराइजेस, अदरवाइज ऑलरेडी देयर आर, जैसे हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, अब आप उसे छेड़छाड़ करोगे तो बोला जाएगा बॉडी वाइटल फॉर सर्वाइवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी किडनी काम करनी चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट द क्वेश्चन फ्रेमिंग वाज लिटिल डिफरेंट, आई वुड से दैट। अदरवाइज कोई भी फंडामेंटल इंटीग्रल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर कोई आपसे बोलता है कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है, तो आप उसको हाँ बोलोगे। दैट्स व्हाट वी कैन कंक्लूड इन दैट सेंस। प्रवेश, एनी मोर पॉइंट यू वांट टू से? नो सर। तो मतलब हम ये एग्री करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसकी फ्रेमिंग इस टाइप से होगी, वो ऐसे आपको मेमोरी बेस्ड पे आपको इंसाइट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको थिंकिंग बेस में लेके जाएगा। जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, जैसा राइट टू लाइफ में करता है, क्वेश्चंस कम इन प्रीलिम्स एग्जाम, वो राइट टू लाइफ में आपको आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ बहुत ही एक्सपेंडेड लिस्ट है वो। अब आज की डेट में दिल्ली में या कहीं पर भी या उत्तराखंड में भी अगर आदमी रात को घर में रहने को भी नहीं है और सड़क के ऊपर मर रहा है वो, देन द गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। दैट इज इट्स राइट, इट इज राइट टू लाइफ। एयर पोल्यूशन से आपकी निजात मिलनी चाहिए, दैट इज राइट टू लाइफ। बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है, दैट इज ऑल्सो राइट, मतलब इट इज एक्सपेंडिंग, दैट्स हाउ इट इज। सो वी हैव टू बी स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि जो बेसिक चीज किताब में दी हुई है वो हमें घोट के याद होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा माइंड 50% खाली होना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ द क्वेश्चन हम उसको हैंडल कर सकें। उससे पहले ही जब प्रिपरेशन मेंटली रेडी हो जाएगी, वो प्रोसेस बहुत बार घूम जाएगा, तो नेचुरली आप एग्जाम में इजीली उस बात को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, वरना एग्जाम में कॉम्प्रिहेंड करने में हमें दिक्कत होती है। सो दैट कंसिस्टेंसी, दैट सिंप्लिसिटी एंड दैट डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट वी कैन से कि भाई ऑल सेलिएंट फीचर, जो अभी प्रवेश ने बात की थी, ऐसा नहीं है सेलिएंट फीचर की, अब कोई ऐसा नहीं है सेलिएंट फीचर इज आल्सो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट नहीं है उसकी, लेकिन इफ ऑल सेलिएंट फीचर्स they are fundamental to the constitution, then indirectly they are all part of the basic structure doctrine. In that sense we are saying doctrine है वो, and doctrine evolves, जैसे national security doctrine है वो भी evolve करेगी। क्या प्रवेश बोलो? Sir, I have an objection that if in the salient features, let's suppose there are 20 plus features of the salient features which are composed as the salient features of the constitution. But composed by whom? अगर वो 20 features of the constitution है, वो compose किसने किए, और ऊपर से वो 50 भी हो सकते हैं। हाँ तो बोलो आगे। तो अगर वो सर 50 भी हैं तो जरूरी है कि मतलब सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन, तो वो सेलिएंट नहीं होगे ना, फिर बात कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है जो इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की हो रही है जो वन ऑफ द इवॉल्विंग इकोनॉमीज है, वन ऑफ द इवॉल्विंग कल्चर है, वन ऑफ द इवॉल्विंग सोसाइटी है, वन ऑफ द इवॉल्विंग नेशंस है। बात उसकी हो रही है जहां पर डिबेट और थॉट को वैल्यू दी जाती है, बात उसकी हो रही है जहां पर मतलब आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी का मिक्सचर होता है। तो नेहरू सोशलिज्म है, नेहरू एंड सोशलिज्म, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है, सेलिएंट फीचर की लिस्ट क्या है ये भी डिपेंड करती है ना। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, या आप जैसे अभी बात कर रहे थे, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि भाई क्या कहना चाहिए, जो जो आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें क्या कहा था कि भाई अगर आप बात ये करते हो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, देन इट फ्लोज फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कोई डिसाइड करती है पॉलिसी को, जब कोई बात होती है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है,
वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और एक मिनिस्टर अलग रास्ता निकालने लग जाता है बाहर जाके कुछ भी, वो उस लीग से हटके करता है, देन हिज एक्शंस और हर एक्शंस विल बी अकाउंटेबल। तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो सेइंग कि वो रिवर्स फ्लो नहीं हो सकता, फ्लो कलेक्टिव के उससे है। तो मिनिस्टर ऐसे कहीं कुछ भी कह रहा है, आप उसको पकड़ के कह दोगे कि भाई इसने कह दिया इसलिए सरकार को गड़बड़ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से इज नो, क्योंकि फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन जो है सबके लिए है वो। सो दैट इज वेरी फाइनली तो इसीलिए आप जब पीटी के क्वेश्चंस करते हो, इसीलिए उसमें ध्यान रखो जो भी हम क्वेश्चंस उठाते हैं उसमें ज्यादा ना वो नहीं होने की जरूरत है, उसको स्मार्टली चेक करना है। यू हैव टू चेक इट स्मार्टली कि यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कई बार क्वेश्चन ही गलत होता है और आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाएगी उससे, आप खुद को गलत मानोगे। तो खुद की थिंकिंग को रेज करना है rather than completely depending on the question only. This is what I will say in the conclusion. Thank you very much. And we will be soon taking up some other question or some other thought in our next discussion. Best of luck to all of you.